ओके पढ़ो देखो, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव. एक मिनट. हाँ, we have the sound is produced by vibrating bodies. This vibration then pass through a medium in the form of waves. In a wave, the particles of the medium vibrate above the main position. The energy of the sound is transferred by vibrating particles from the source of sound. Let us understand from the following examples. A vertical metal strip is taken with a lower end fixed. When the top part of strip is pulled to one side and released, the strip vibrates and produces sound. Let us take the medium as air. At the position A, the strip is not vibrating. Particles are uniformly spaced out. At position B, the strip moves to the right from A to B. A to B. It pressures the particles due to which they get closer to each other as shown. The region is called compression, indicated by C. The particles. नहीं वो नहीं, वो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे एट ए पोजीशन सी, ये वाला. एट द पोजीशन. हाँ सॉरी, ये रहा लेफ्ट में, ये रहा. हाँ सॉरी. At position C, the strip returns to its original position. After pushing the particles in the front, the compressed air particles move forward and the air particles near the strip return back to the normal form. At position D, the metal strip moves to left A, C and creates a space between the air particles. The particles move away from each other, forming rarefaction indicated by R. At position E, the metal strip returns to A while the rarefaction R moves ahead and the air particles near the strip comes back to their normal positions as the metal strip keeps vibrating and to and fro. And from regions of compression and rarefaction are produced in air. One complete to and from motion of the strip produces one compression and one rarefaction, which together is called one wave. Okay, हाँ. The particles which vibrate in the direction of propagation of sound are called longitudinal wave. Longitudinal wave can be produced in solid, liquid and in gases as well. We must understand that the particles vibrate if only the energy sound that is transferred and the particles actually not leave their position, that is their mean position. Okay, thank you. Bye. देखो ये वाला ये देख लेना, ये एग्जांपल इतना कोई मतलब आपको पसंद आने जैसा नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बस स्टिल देखो इसमें क्या लिखा है, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव. प्रोपोगेशन मतलब कैसे क्रिएट होता है, आगे कैसे बढ़ता है, बरोबर है. क्रिएट होके आगे बढ़ना, प्रोपोगेट होना मतलब आगे बढ़ना. तो एक साउंड क्रिएट होता है एक जगह पे और आगे बढ़ेगा, तो कैसे बढ़ता है वो पूरा फिनोमेना उन्होंने दिखाया है. अल्टीमेटली आप देखो, अगर वो लोग ने कहने का मतलब वो है कि ऐसा एक स्ट्रिप लिया हुआ, बरोबर, ऐसा मैंने ऐसा रखा हुआ, फिर मैं उसको ऐसा वाइब्रेट करूंगा, ऐसा वाइब्रेट करने से मतलब ऐसा रखा है, ये वाइब्रेट करूंगा, आगे जाएगा, तो आगे जाएगा, जब ये ऐसा नीचे आगे जाएगा तो सब उसके पार्टिकल्स आगे जाएंगे, और ये जब पीछे आएगा, रिटर्न आएगा, तो वापस ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा, फिर वो वापस रिटर्न ऐसा आएगा. तो पूरा अगर आप है ना उसको ये एजम्पशन रखो, एक स्ट्रिप है, वो स्ट्रिप आगे पीछे मूव होती है, तो कैसे साउंड वेव क्रिएट होता है, बस वो एक लॉजिक आप माइंड में रख के आगे आप देखना, बरोबर. अभी तो क्या लिखा, वी हैव लर्न दैट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी. दिस वाइब्रेशन देन पास थ्रू अ मीडियम इन फॉर्म ऑफ वेव. तो ये जो है आगे वेव के फॉर्म में आगे बढ़ेंगे.
इन अ वेव द पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट अबाउट द मीन पोजीशन। अल्टीमेटली क्या होता है, इसी अगर कंसेप्ट का बात करूँ ना, तो देखो यहाँ पे लेट्स से ऐसा चीज है, ऐसा है आपका पार्टिकल है, बरोबर है। दीज आर द ऑल, समझो ये सॉलिड है या लिक्विड है, कोई भी गैस है, ये सब पार्टिकल है। अभी जब भी ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ऐसा ऐसा मूव होता है, तो वो क्या करेगा, वो मूवमेंट, वो एनर्जी इसको देगा। तो ये भी ये क्या करेगा, ऐसा ऐसा मूव करेगा, फिर वो एनर्जी इसको देगा, ये भी ऐसा ऐसा मूव करेगा, वैसे करके वो चीज ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ती है। ओके, तो मीन पोजीशन मतलब ये वाला पार्टिकल है वो ऐसा ऊपर नीचे वाइब्रेट होता है, दैट इज कॉल्ड मीन पोजीशन। मीन मतलब अपनी जगह पे रह के ही वाइब्रेशन करना, वो आगे नहीं बढ़ता है, ये पार्टिकल आगे नहीं बढ़ता है, वो तो अपनी जगह पे हिलता है, अपनी जगह पे हिल के वो एनर्जी बाजू वाले पार्टिकल को देगा, देन keeps going on. That is what they are trying to convey. The energy of sound is transferred by vibrating particle from the source of sound. तो ठीक है, लेटर्स अभी उन्होंने क्या किया, ये वाला एग्जांपल में देख लो, यहाँ पे जनरली वो लोग का ऐसा कहने का है कि ये वाला चीज है, बरोबर। अभी आपकी जैसे मैंने अभी स्केल रखा था, ठीक है, स्केल मैंने सीधा रखा हुआ है, तो यहाँ पे जो एयर है, एयर के पार्टिकल वो ऐसे अपने यूनिफॉर्म पोजीशन पे है, मतलब ये सब एयर के पार्टिकल है, ऐसा समझो। यहाँ पे स्केल है, अभी स्केल को मैं ऐसा खींचूंगा पीछे, पीछे खींच के छोड़ दूंगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये वाला जो स्केल है वो आगे धक्का मारेगा, आगे जाएगा, तो क्या होगा, ये मेरी पहली सिचुएशन है, फर्स्ट सिचुएशन, उसमें मेरा मतलब स्टैंडर्ड सिस्टम है, कुछ भी मूवमेंट नहीं है। नाउ इन सेकंड पोजीशन अगर मेरी स्केल आगे गई तो क्या हो जाएगा, वो उन्होंने बताया है, ठीक है। सर, हाँ बोलो। तो वो मैथ की स्ट्रिप से वो लोग करते हैं। हाँ सर, मैंने रीड किया ना, हाँ मैथ स्ट्रिप इज टेकन, तो वो लोग स्ट्रिप को निकाल के ये सब करते हैं। निकाल के नहीं, ऐसा ये जो पट्टी दिख रहा है आपको, मेरा स्केल दिख रहा है, उसको ऐसा फिक्स पकड़ा है और उसको ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा, बस तो साउंड क्रिएट होता है। एक जगह पे आप रखोगे ना, जोर से करोगे तो साउंड होता है, बट वो कैसे क्रिएट होता है और आगे कैसे बढ़ता है वो उन्होंने बताया। अभी देखो मेरी जो स्ट्रिप है ये आगे गई, ये स्ट्रिप आगे जाने से क्या होगा, एयर के पार्टिकल है ना वो एक साथ में यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, बिकॉज ये धक्का मारा इसने आगे, तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन साथ में रहेगा, बट ये वाले पोर्शन पे अभी भी कुछ इफेक्ट नहीं है। तो अल्टीमेटली ये जो पार्टिकल है वो बाजू बाजू में आ गए, देखो 1 2 3 4 ये सब साथ में आ गए यहाँ पे। ओके, ये सेकंड पोजीशन। देन उन्होंने क्या किया इसके बाद, और पोजीशन तो वही है, अभी वो क्या करेगी सेकंड वाले में, थर्ड वाले में क्या करेगी, अभी वो स्ट्रिप है पीछे जाने की कोशिश करेगी, बिकॉज अभी आगे का काम उसका हो गया। नाउ ही स्टार्ट गोइंग बैकवर्ड, देखो पहले A to B था, अभी B to है, तो वो टाइम पे क्या होगा, ये वाला वेव है वो आगे चला गया और यहाँ पे जगह हो गई, तो ये वाला वेव आगे गया, ये वाला यहाँ पे आ गया, और हियर यू आर अगेन ऑन द ओरिजिनल पोजीशन। बस ऐसा, ये मुझे लग रहा है नहीं है पूछेगे, बट आप कंसेप्ट समझ लो, ठीक है। अभी चौथी स्टेज में क्या हुआ, दिस इज योर फोर्थ स्टेज, A to B to ये था ना, एक सेकंड ना, सर तो दोनों में अलग अलग स्ट्रिप काम आएगी। नहीं वही स्ट्रिप आगे पीछे होती है बेटा, अलग अलग स्ट्रिप नहीं है। हाँ वही स्ट्रिप आपने एक मारा तो पहले आगे जाएगी फिर बाद में जैसे स्केल आगे पीछे होती है वैसे क्या, जैसे स्टील की स्केल आगे पीछे होती है। हाँ वही वही, ये स्टील है, ये आगे ऐसा ऐसा होता है ना, ऐसा ऐसा करके वो गाड़ी में आप रखते हो ना आगे, एक मालूम है कुछ ऐसा रहता है कार के अंदर, वैसा ऐसा मुंह स्प्रिंग के ऊपर मुंह होता रहता है वैसा, स्प्रिंग के ऊपर कोई ऐसा इमोजी होता है। हाँ बस, तो वैसा ही वो आगे पीछे मुंह हो रहा है, मतलब मेरा यहाँ पे ऐसा एक मेरा ये स्टैंड है, ठीक है, एक स्टैंड है और यहाँ पे मैंने स्केल रखा हुआ है, तो स्केल क्या करेगा, पहले आगे जाएगा फिर पीछे जाएगा फिर वापस आगे फिर पीछे, वैसा होता रहेगा। ओके, तो अभी क्या हुआ, नाउ व्हाट हैपन, अभी स्केल अपनी मीन पोजीशन से वापस पीछे चली गई, तब तक वो साउंड जो वेव था वो यहाँ से यहाँ पे आ गया, बराबर, वो थोड़ा आगे बढ़ गया वापस, ये पूरा पार्ट यहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन जो आपकी थी ना वहाँ पे स्पेस बन गया, तो अल्टीमेटली वो वेव आगे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। देन अभी नेक्स्ट में वापिस क्या करेगा, पांचवें पार्ट में वापिस वो क्या करेगा, अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा रिटर्न जाके, मतलब ये पूरा एक साइकिल बनता है बेसिकली। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे से देखो पहले आप देखो मीन पोजीशन, फिर आगे गया,
आगे जाने के बाद वो पीछे आने का चालू कर दिया, पीछे आ गया, पीछे आने के बाद नाउ अगेन वो वापस आगे आने की कोशिश करेगी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, देखो ये जो वाला आपका बाजू बाजू वाले जो वेव्स है ना, उसको क्या बोलते हैं वो याद रखो। और ये दूर दूर वाले वेव, मतलब ये दोनों के बीच में गैप है, उसको क्या बोलेंगे वो याद रखना है, बरोबर है। इसको बोलेंगे, इन्होंने लिखा नहीं, हाँ ये ना आर है मतलब रेयर फ्रैक्शन, जो बीच में गैप है ना ये इसको बोलेंगे रेयर फ्रैक्शन। आपको ये पूछ सकते हैं, ठीक है, ये याद रखो। और सी वाला जो है, हाँ? जिसमें बड़ा गैप होता है उसको रेयर, बरोबर है, करेक्ट 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 एग्जैक्ट, छोटा गैप होता है उसको कंप्रेशन कंप्रेशन, छोटा गैप को कंप्रेशन। बस ये याद रखो, आपका काम हो जाएगा। आपको ऐसा देंगे पिक्चर स्टडी में और बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, ऐसा ए यहाँ पे लिख लेंगे ऐसा ए, और बोलेंगे गिव द नेम, ए क्या है ऐसा बोलेंगे ये वाला, हाँ कंप्रेशन, इसको बोलेंगे बी, बी क्या आ जाएगा रेयर फ्रैक्शन। हाँ बोलो मोक्षा। तो सर मतलब आर से जो आर लिखा है तो वो रेयर फ्रैक्शन, हाँ सी लिखा तो वो बट रेयर एग्जाम में आर नहीं देंगे ना, वो आर के बदले और कोई नाम देंगे, नहीं तो याद पता चलेगा, बरोबर। अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि ये वेव आए, बोलो। जो साथ में होता है वो कंपैरिजन है, तो कंपैरिजन, हाँ कंपैरिजन, जो दूर दूर है वो रेयर फ्रैक्शन। अरे अल्टीमेटली आप सोचो समझो, आप लोग सब खड़े हो बरोबर लाइन के अंदर, स्कूल के अंदर ऐसा लाइन में खड़े हो, ठीक है। अभी क्या हुआ, किसी ने यहाँ से इसको धक्का मारा, तो ये धक्का मारने से क्या होगा, 2 3 4 लोग एक साथ में आ जाएंगे टेम्पररी बेस पे, बरोबर है। और ये लोग तो दूर ही, तो ये मेरा हो गया, रेयर फ्रैक्शन में जैसे बड़े सेलिब्रिटी दूर रहते हैं और हमें रेयरली मिलते हैं, तो रेयर फ्रैक्शन। हाँ बस ऐसा, अब याद रखो चलेगा, बरोबर। तो आप बाजू बाजू में आ गए तो कंपैरिजन, ये दूर बच्चे तो रेयर फ्रैक्शन। वही वापस क्या हुआ, ये लोग ने क्या करेंगे, ये अपना खुद ये वेव वापस आगे बढ़ेगा, तो ग्रेजुअली ये बाद में खड़े हो जाएंगे, ये रेयर फ्रैक्शन हो जाएगा, और बाद में ये वाला पार्ट बाजू बाजू में हो जाएगा, मतलब ये कंपैरिजन, ठीक है, समझे आप लॉजिक। अभी साइकिल खड़ी रहती है, आपको मालूम है साइकिल गिर जाती है, एक साइकिल गिरी तो क्या होगी, उसके बाजू बाजू में पीछे के आगे से पूरी लाइन गिरने लगती है, बरोबर। तो आगे की समझो ये लाइन है, यहाँ पे ऐसा है बरोबर, ये सब साइकिल ऐसा एज्यूम करो, ये गिर गई ऐसा ऐसा, तो क्या होगा, ये सब साइकिल ऐसे ऐसे गिर जाएगी। तो ये वाला पार्ट जब भी पहले तो ये नहीं गिरी, मतलब क्या हुआ स्टार्टिंग में तो ऐसा था, बरोबर है, तो ये मेरा हो गया कॉम्प्रेशन, बाद में ये रेयर फ्रैक्शन। लेकिन ग्रेजुअली क्या, इसने इसको धक्का मारा तो ये भी गिरी, अभी क्या हो गया, ये हो गया मेरा कॉम्प्रेशन, और किसी बंदे ने क्या किया, इसको उठा दिया वापस, तो ये होने लगा वापस रेयर फ्रैक्शन, बरोबर है। तो दूर वाला पार्ट है उसको बोलेंगे रेयर फ्रैक्शन, नजदीक वाले को कॉम्प्रेशन, बस इतना याद रखो, आई थिंक मोर देन इनफ, ओके। और यहाँ पे एक भी और चीज है, ये देखो ये पूरा वेव, मतलब अगर मेरा एक सेट है ना, ये सेट को मैं बोलूंगा, मतलब मेरा ये देखो यहाँ से उन्होंने बताया भी है, सी वेव, अभी हम लोग ने आगे देखा था, ये वाला वेव समझने में थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब अदरवाइज वो वेव हम लोग ने देखा था ना एम्पलीट्यूड वाला, वो तो इजी था, मतलब देखो ऐसा था, ये ऐसा था, फिर हम लोग ने सीखा था ये, बरोबर, एक ऐसा, ये मेरा एक वेव हो जाता है, बरोबर, दिस इज माय वन वेव, बरोबर। तो ये इजी है समझ में, ओके। और आई कैन से दिस वे, ये भी मेरा एक वन वे काउंट होगा, अगर मैं बोलूंगा ऐसा, ठीक है, ये भी मेरा वन वे, मतलब देखो आधा यहाँ पे एक आधा यहाँ पे, मतलब ये पूरा सर्कल हुआ काउंट, यहाँ पे भी आधा, यहाँ पे ये भी मेरा वन वेव, ये इजी अंडरस्टैंड। बट यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, दिस इज योर वन वेव, ठीक है, कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, ये पूरा सेट है, दैट इज कॉल्ड वन वेव, बस इतना कुछ याद रखो, मेरे हिसाब से कोई इससे डिफिकल्ट नहीं आने वाला है। देन उन्होंने कुछ बोला है लॉन्गिट्यूडनल वेव, अच्छा डेफिनेशन लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो द पार्टिकल विच वाइब्रेट इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड आर कॉल्ड द लॉन्जिट्यूडनल वेव। तो ये जो वेव मैं बताया आपको आगे आगे बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड द लॉन्जिट्यूडनल वेव, बस ये डेफिनेशन याद रखो, पूरा वर्ड टू वर्ड याद रखना पड़ेगा। नाउ लॉन्जिट्यूडनल वेव कैन बी प्रोड्यूस इन सॉलिड, तो ऐसी वेव है ना सब जगह पे प्रोड्यूस होती है, मतलब सॉलिड में भी, गैस में भी और लिक्विड में भी, ये वेव एवरीवेयर यू कैन प्रोड्यूस, बट उसको एक मीडियम होना चाहिए। मीडियम होना चाहिए मतलब क्या है कि वो जैसे अभी अपना आवाज आ रहा है, ओके, तो अगर मैं बोल रहा हूँ वो आपको सुनाई दे रहा है, देयर इज ए मीडियम बिटवीन अस। अगर मैं मीडियम नहीं रखूंगा, मतलब मैं हवा निकाल दूंगा, वैक्यूम क्रिएट करूंगा, तो आपको आवाज नहीं आएगा,
ठीक है, वो वैक्यूम क्रिएट करना पड़ता है, उसके अंदर की जितनी भी एयर है यू हैव टू पंप से बाहर निकाल देनी पड़ेगी, देन यू कैन नॉट एबल टू ईयर। आगे एक्सपेरिमेंट आएगा उसका, हम देखेंगे क्या है उसका, बरोबर है। अच्छा, अभी इसके एक दो वीडियो वो देख लेते हैं। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हेन पार्टिकल्स वाइब्रेट इट इज ओनली एनर्जी। हाँ मैं 5 मिनट के लिए लीव कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। It is only the energy that is transferred and particle actually do not leave their position। मतलब पार्टिकल में आपको पहले बोला कि ये पार्टिकल खुद आगे नहीं बढ़ते, बराबर। वेव में क्या होता है, देखो ये खुद आगे आया, फिर ये खुद ऐसा नहीं है, ये खुद अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट होता है। देन व्हाट हैपन, दिस एनर्जी ग्रेजुअली गेन बाय द बाजू वाला पार्टिकल, वो ऐसा वाइब्रेट होगा लाइक दैट, बरोबर है। तो वही उसने बोला हुआ है, कब कहाँ एमसीक्यू में किधर पूछ लिया तो देख लेना फिलिंग द ब्लैंक्स में। ओके, क्या लिखा है, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हेन पार्टिकल वाइब्रेट इट इज ओनली एनर्जी, बेसिकली साउंड, दैट इज ट्रांसफर्ड एंड द पार्टिकल एक्चुअली डू नॉट लीव देयर पोजीशन, दैट इज देयर मेन पोजीशन। मेन पोजीशन से वो हटते नहीं है, खुद की पोजीशन पे रहते हैं। अभी 2-3 वीडियो है वो देख लेते हैं, आप लोगों को कल भेजा था मैंने, वही। हाँ वो यूट्यूब का ना। हाँ वही देख रहे हैं हम लोग बेसिकली। Let us understand एक मिनट। हाँ 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 मैं शेयर करता हूँ, हाँ बोलो ना। उसके बाद कौन सा कंटिन्यू करने वाले हैं ना। क्या बेटा? ठीक है कुछ How to have a Shraddha Bali Diwali. How to कितना have a है Shraddha यार? Bali Diwali. Miriam, so इस दिवाली की तैयारी में कितना हाँ चलो, मुझे टैब शेयर करना पड़ेगा तो आपको आवाज आएगा। ये भाई क्यों आवाज कर रहे हो? हाँ चलो। through which sound travels. When a vibrating object moves forward, it pushes and compresses the air in front of it, creating a region of high pressure. This region is called a compression. Now, this compression starts to move away from the vibrating object in all the directions. When the vibrating object moves backwards, it creates a region of low pressure called rarefaction. When an object moves back and forth rapidly, a series of compressions and rarefactions is created in the air. This makes up the sound wave that propagates through the medium. Now let's see a demonstration to figure out how all of this happens. For this, we will use a very unique object. It's called a slinky. Now let's hold it from both the ends. Now let's stretch the slinky and then give it a sharp push towards the other end. If we push and pull the slinky alternatively, what do you observe? You will observe that the slinky will move back and forth parallel to the direction of the disturbance. The regions where the coils come closer are called compressions, C, and the region where the coils are further apart is called rarefaction, R. The waves that travel in such a way are called longitudinal waves. In longitudinal waves, the individual particles of the medium move in a direction parallel to the direction of propagation of the disturbance. The particles do not move from one place to another, but they simply oscillate back and forth about their position of rest. Now, this is exactly how a sound wave propagates. So, sound waves are longitudinal waves. Well, it's been a great... ठीक है, अच्छा था, मस्त उन्होंने बताया है। हाँ अच्छा था, बराबर है। ठीक है, अभी और एक दो छोटा छोटा ही है बट इम्पोर्टेंट है। हाँ How is hearing possible when a drum is beaten? When a drum is beaten, શું? આવા ઢોલ તો ઓલા સાઉથ કે કસામાં
हाँ, the ठीक है। air around the drum experiences high pressure. The air, which are very close to the drum, are pushed away from the drum. This displaced air exerts a force on the adjacent particles and come back to its main position. This process continues in the medium till the disturbance created by the vibrating object reaches our ear. Thus, sound propagates through air in the region of high pressure and low pressure. The region of high pressure is experienced in places where the particles of the medium are very close to each other, is known as compressions. It is denoted by C. The region of low pressure is experienced in places where the particles of medium are far apart from each other, is known as rarefactions. It is denoted by R. Here the particles are vibrating along the direction of propagation of the disturbances. This wave is known as longitudinal wave. Longitudinal wave is a wave in which the particles of the medium vibrate in a direction parallel to the direction of propagation of the wave. This creates compressions and rarefactions alternatively in the medium. ओके, देखो थोड़ा बड़ा है यहाँ पे, आपको डेफिनेशन दिया है। हाँ सर। हाँ, बट आप आपका ही कर लेना लास्ट वीडियो। सर उसके बाद क्या करने वाले? आगे है ना, आगे का पीडीए वो एक्सपेरिमेंट है, सब अलग 1 by 1। सर प्लीज गेम ये नहीं, गेम आज नहीं, मेरा क्लास है बेटा आगे। The compressions and rarefaction with the help of activity. Take a long spring and fix one with rigid surface and hold the other end with your hand. Now alternatively push and pull the string and observe. You observe that some regions of coil of spring come closer to each दिखेगा, देख भाई, रिजॉइन कर। दिख रहा है। हाँ दिखाएगी। हाँ other and some regions move apart. These regions which come closer are called compressions and other are called rarefaction. बस इतना ही था, ज्यादा था भी नहीं। चलो ठीक है। वो इससे पहले यही तो लिखा। हाँ मतलब ठीक है, अभी ऑलमोस्ट सिमिलर ही था। इसने वो वर्टिकल, वो लटका हुआ था। हाँ तो नीचे लेटाया हुआ था। हाँ वो उसने ऐसा हॉरिजॉन्टल रखा था, इसमें वर्टिकल रखा है उन्होंने। हाँ सॉलिड मतलब किधर तो रखा था, टंगा था और एक तरफ से पकड़ा था उसने। ठीक है चलो। सो नाउ अभी अपना है साउंड नीड मीडियम टू ट्रैवल। ओके, मीडियम मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडियम? अगर आप स्कूल से आप आपके घर से स्कूल आ रहे हो, व्हाट इज द मीडियम ऑफ ट्रैवल? एक्टिवा, वॉकिंग। वाह, वेरी गुड मितांश, नाइस। एक्टिवा या तो वॉकिंग, चल के जा रहे हो, या तो आपको कोई छोड़ने, हाँ साइकिल, वाह, कार, बस, वेरी गुड, बाइक, सुपर। तो ये आपका मीडियम हो गया। हाँ तो वो मीडियम हो गया। वैसे ही साउंड को भी मीडियम चाहिए। अभी हम बात कर रहे तो कौन सा मीडियम है साउंड को ट्रैवल करने के लिए? बोलो अभी हम कौन सा? रॉन्ग आंसर मितांश। नहीं, कौन सा मीडियम है? मीडियम, विच मीडियम साउंड अभी हम बात कर रहे हैं, तो कौन सा मीडियम? अरे वैसे, अच्छा चलो छोड़ो, मैं क्लास में खड़ा हूँ और मैं कुछ स्पीच दे रहा हूँ, ओके, तो कौन सा मीडियम है? हाँ बरोबर है, वाह वेरी गुड। तो एयर इज अ मीडियम, बरोबर है, मीडियम एयर है। तो वो टाइम, तो अगर उसने क्या बोला है, साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। ओके, अभी आप यहाँ पे पढ़ोगे क्या है, उसका एक एक्सपेरिमेंट है छोटा सा, विच इज वेरी इजी। ठीक है, अगर ये चाहिए तो हम एक बार देखेंगे, यूट्यूब पे मिलेगा तो हम गो थ्रू भी करेंगे। हाँ पढ़ो चलो। अरे इसके बाद मिताज आप पढ़ लेना भाई, क्या है, बहुत सारा पूरा बड़ा चैप्टर है और टेंशन मत। नक्स पढ़ेगा ना, नक्स आई थिंक बोला ना। उसके बाद मैं करूँ। हाँ ठीक है, नक्स बोलो। उसके बाद मैं sound needs a medium to travel. Unlike light, sound can travel only through a material medium. Sound is produced by the vibrations in a body. The vibrations start at the point and transmit from that point to the next one, and the process continues.
These vibrations travel in all directions, and when they reach eardrum. our eardrum, they are perceived as sound by the ear. Hence a material medium is necessary for the propagation of sound from one place to another. It means that sound cannot travel through vacuum. This can be clearly demonstrated by the famous bell jar experiment given in experiment 6 on page 92. हाँ. As there is no medium on the moon, one cannot hear the sound produced by another man. We cannot hear the sound of an explosion taking place in the stars because of the absence of material medium in space. पढ़ो एक्सपेरिमेंट भी पढ़ लो. साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन. Sound needs a medium for propagation. Take a glass bell jar and suspend an electric bell in it. Pass electric wires through an airtight cork and connect them to a battery as shown in the figure 6.8. Keep the bell jar over a flat dish. A flat dish and connect it to a vacuum pump. When the wires are connected to the battery, the hammer of the electric bell strikes the gong, and you can hear the sound. This is because the jar contains air and sound travels through the air. Now start the vacuum pump and remove the air slowly from the bell jar. You find that the sound of an electric bell becomes fainter and ultimately becomes inaudible, but the hammer can still be seen striking. Gosh, but the hammer can be can be seen striking and gone. This experiment shows that the sound cannot travel through the vacuum. It needs a material medium for its प्रोपोगेशन मतलब आगे बढ़ना. ओके थैंक यू. नेक्स्ट देखो क्या लिखा है इसमें, बहुत इजी है. इसमें सिंपल है. अनलाइक लाइट साउंड कैन ट्रैवल ओनली थ्रू अ मटेरियल मीडियम. ओके साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन इन अ बॉडी. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा. ठीक है. द वाइब्रेशन स्टार्ट एट ए पॉइंट एंड ट्रांसमिट फ्रॉम दैट पॉइंट टू नेक्स्ट वन एंड द प्रोसेस कंटिन्यू. मैंने बोला ऑलरेडी कि वो वाइब्रेट करेगा बॉडी. ओके यहाँ पे ये पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, वो ये वाइब्रेशन बाजू वाले को एनर्जी मिलेगी, ये भी वाइब्रेट करेगा. वैसे करके आगे आगे बढ़ रहा है. अभी ये सब चीज हो रहा है कोई ना कोई प्लेस पे, या तो सॉलिड पे होगा, या तो गैस के ऊपर, या तो लिक्विड के ऊपर. पर वो ये सब चीज, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ओके एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो है, वो यू रिक्वायर्ड समथिंग. ओके आपको या तो सॉलिड पे आवाज आएगा, या तो गैस पे, या तो लिक्विड पे. लेकिन ये मीडियम ही नहीं है अगर आपका, तो ये ट्रैवल ही नहीं कर पाएगा. मतलब अगर मीडियम नहीं है, यू कैन नॉट गो टू योर स्कूल. आइदर यू हैव 11 नंबर का आपने बोला बस, ठीक है, या तो बाइसिकल, या तो एक्टिवा, या तो कार, या वॉट एवर मे बी. बट अगर मीडियम नहीं है, देन इट डिफिकल्ट, यू कैन नॉट रीच टू योर स्कूल. सेम वे साउंड कैन नॉट रीच टू योर ईयर ड्रम मतलब ईयर, पीछे अंदर कान में जो ईयर ड्रम रहता है, वहां पे तक आपका आवाज नहीं पहुंचेगा. सिंपल बात है. मतलब कान का पर्दा. यस वेरी वेल. ईयरड्रम मतलब कान का पर्दा. सो बोला है दिस वाइब्रेशन ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन एंड व्हेन दे रीच टू योर ईयरड्रम दे आर परसीव्ड. परसीव मतलब सेंसेशन होगा, वो ब्रेन को मैसेज जाएगा. पहले ही लेक्चर में बताया था, एज साउंड बाय द ईयर, और वो ब्रेन डिटेक्ट करेगा साउंड को. हेंस अ मटेरियल मीडियम इज नेसेसरी. ओके कुछ ना कुछ चाहिए, एयर चाहिए, गैस चाहिए, साउंड सॉलिड चाहिए. मटेरियल मीडियम मतलब लिक्विड, सॉलिड, गैस, कुछ ना कुछ चाहिए ट्रैवल कराने के लिए. आपको भी स्कूल से बस जाना है, घर जाना है, यू रिक्वायर समथिंग, यू नो, आइदर यू रिक्वायर बाइक, कार, योर लेग्स, व्हाटएवर. ओके सो इट मींस दैट साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम. दैट मीन ये याद रखो, बहुत बड़ा वर्ड है. वैक्यूम में वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा. बरोबर है, ये याद रखो. इसका यूज आपका एक्सपेरिमेंट पे ही होने वाला है, यहाँ से और कुछ भी पूछने का चांसेस नहीं है.
बट स्टिल दिस कैन बी क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय दिस. अभी एक्सपेरिमेंट एक बार हम लोग देख लेते हैं, फिर मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ. तो इसमें क्या किया है, सिंपल बात है, देखो एकदम लॉजिकल है. एक उन्होंने बेल है, अपने घर पे जो बेल है ना वो यहाँ पे अंदर डाल दिया उन्होंने, बरोबर है. और नॉर्मल जार लिया कांच का, ओके, उसके अंदर उन्होंने एक, आपने स्विच दबाया, आवाज आ रहा है, आवाज आपके कान में भी आएगा, आप बाहर खड़े हो आपको आवाज आएगा. देन व्हाट हैपन, यहाँ पे एक होल किया हुआ है, यहाँ से जो एयर अंदर थी ना वो निकाल ली उन्होंने, वैक्यूम पंप से खींच लिया. पंप से बाहर आप जैसे भरते हो ना हवा, वैसे खींच भी सकते हो. तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर लिया. अभी वो लोग, अभी स्विच दबाया तो आवाज आ रहा है, लेकिन पहले स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा आएगा, देन लेटर ऑन विद इन 1 मिनट आपको कुछ भी आवाज नहीं आएगा. वापिस आप आवाज कर बेल दबाओगे, आवाज ही नहीं आएगा. आपको दिख भी रहा है यहाँ पे कि ये जो गोंग मतलब क्या होता है, देखो गोंग मतलब ऐसा वो हथौड़ी टाइप ऐसा रहता है ना, एक ऐसा वो इसके ऊपर मार रहा है. वो ये मेरा बेल है, ये एल्यूमिनियम का, तो इसके ऊपर आवाज आएगा, टक 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 कर रहा हो, लेकिन आपको सुना ही नहीं देगा. आप बोलोगे अरे आवाज पहले तो आ रहा था, अभी क्यों नहीं आ रहा है? तो भाई उसमें से क्या हुआ, आपने वैक्यूम क्रिएट किया है. तो आपको क्या पूछ सकते हैं एग्जाम में, वो देखो. देखो हमेशा क्या हो सकता है, एक तो प्रोसीजर, एक तो एम, ओके, मेन तो एम, फिर प्रोसीजर, फिर कंक्लूजन, ऐसा पूछेंगे आपको. बोलेंगे कि ये क्या है, वो फॉर ये एक्सपेरिमेंट किस चीज के लिए हम कर रहे हैं. आपको एक ही लाइन लिखना है, साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, बस दैट्स इट. इतना लिखा 1 मार्क्स, ओके. उसने बाद में नीचे भी लिखा हो ना, एक्सपेरिमेंट शोज दैट, कंक्लूजन क्या है, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, दिस इज योर कंक्लूजन. तो आप वो तरीके से पढ़ोगे, देन यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड वेयर इट नीड्स अ मटेरियल मीडियम फॉर इस प्रोपोगेशन. मतलब कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करेगा साउंड, बस इतना ही है, इसमें और कुछ भी नहीं है. अभी एक्सपेरिमेंट अगर है मिल रहा है तो हम देखते हैं. First, press the switch for the bell and you will be able to hear the bell clearly. The bell jar is connected to a vacuum pump as shown. Now, start to pump the air out of the jar gradually. You will hear the sound becoming fainter, although the same current is passing to the electric bell. Soon you will notice the less air is left inside the bell jar, the less the sound becomes. If the air is removed completely, you won't be able to hear any sound. From this experiment, we can understand that sound cannot travel through vacuum. वाह, वेरी गुड, वेरी शॉर्ट एंड स्वीट दे हो एक्सप्लेन. चलो एक और है, ये भी देख लेते हैं. अच्छा ये वीडियो शायद ये लाइव है. हाँ इसके बाद छोड़ दो ना. हाँ बेटा रुकना थोड़ा, कल छुट्टी दिया ना तो मुंह दो क्या. कल बच्चे ज्वाइन ही नहीं हुए तो छुट्टी is typified by the particular apparatus here. This is what one might call चलो देखो देखो मस्त ये लाइव है. The experiment that I'm going to do with this was first done in 1705. So it's a very old one. It was done by a man called Francis Hawksbee, who quite a lot of people think was the first and one of the great lecture demonstrators. And he did the experiment before the Royal Society. We have a clockwork mechanism that will ring the bell, but we've pumped out all the air from this bell jar, and so when I start it running, you won't be able to hear it. You can see the hammer hitting the bell. It's got a life of its own, this plunger. I've got to hold on to it. But you can see it striking the bell, but because there's no air inside, you can't hear it. Now I'm going to let the air in, and as we let the air in, now I think you can hear the bell quite clearly. And that's a very nice experiment to demonstrate how air is needed for the transmission of sound. Now this experiment was done a good deal later, in the middle of the 19th century, by John Tyndall, who in fact followed Michael Faraday as director of this institution. And here we have a picture in Faraday's book of this apparatus, and I think you can see, although the bell jar may be different, the actual clockwork is very much the same as the clockwork that we have in the bell jar there. And I think the fact that the hammer, this hammer here, is so similar
to the hammer on that clockwork more or less proves that that is the original. वाह, ये लाइव देखा आपने भाई, वेरी गुड। चलो, पहले जो एयर निकाल दिया था तो आपको आवाज नहीं आ रहा है, फिर उन्होंने वो एयर पंप किया अंदर तो आपको आवाज आने लगा, बस दैट्स इट। क्या था अभी, इसके बाद ये एक्सपेरिमेंट हो गया। नाउ आपका है साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये अगेन आपका है, हाँ पढ़ो अभी। और कौन था? मितांश, मितांश मितांश के बाद मैं ही। हाँ बाद में ये रहा साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड। Take a wooden table or desk and place your ear at one end of it. Ask a friend to gently knock at the other end. You will be able to hear the sound very clearly. This shows that solid sound can travel through solid. हाँ पढ़ो, साउंड कैन ट्रैवल थ्रू लिक्विड। Sound can travel through liquid. Place a squeaking toy in a polythene bag and hold it in a bucket of water. Can you hear it squeak when you squeeze it? Place your ear against the side of the bucket and squeeze the toy again. Do you hear it squeak? In which case did you hear the sound better? This experiment shows that sound can travel through liquid. We can also conclude from this experiment that sound travels faster in liquid than in air. हाँ फिर क्या है, गैस। हाँ Sound can travel faster in a balloon with air and place it in your ear. Scratch the other end of it with your finger. You will notice that the sound reaches your ear. This experiment shows that sound can travel through gases. Rail workers sometimes place their ears on the track to check if a train is approaching or not. हाँ or not, even though the train is not visible. They can hear the sound of the train through steel rails much before the sound reaches them through the air. This is because the speed of sound in steel very fast, 5,100 meters per second. In comparison to air, 332 meters per second. The same method was used by red Indians to find out whether the enemy was approaching their camp or not. They put ears to the ground to hear the sound of the hooves or horses. If the sound increased, it warned them that the enemy was approaching. वाह वेरी गुड, बस थैंक यू मितांश, मस्त पढ़ा। ओके, बाद में स्पीड ऑफ साउंड है, बाद में देखेंगे। तो पहले देखो क्या है, उसको अल्टीमेटली वो बोल रहे हैं कि हर एक जगह पे सॉलिड लिक्विड गैस में ट्रैवल करता है। तो इसमें कुछ किया नहीं, आपने यहाँ पे कान रखा, यहाँ पे किसी ने आवाज किया ऐसा ऐसा करके, तो आपको कान में उधर आवाज आएगा ऑब्वियसली। इसका मतलब करते हैं, बरोबर है। तो वही है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं। इसमें उसने बोला है यहाँ पे उसने क्या बोला है कि ऐसे एक डॉल रखा, ओके, पॉलीथीन में, और आवाज आता है ना, टू टू चू चू करके आवाज आता है ना, वो वाली डॉल, बरोबर है। तो उसने रखा और आपने कान बाजू में रखे हुए, ये ड्रम के बाजू में, तो आपको आवाज आएगा, मतलब वो लिक्विड में से भी पास हो रहा है साउंड। तो सिंपल बात है। और देन साउंड कैन ट्रैवल थ्रू लिक्विड। इसमें और भी एक है, मतलब वो ऐसा बोल रहा है कि अगर आपने पानी में नहीं रख के बाहर रखा और आपने आवाज सुना और पानी में डाल के आवाज सुना, तो पानी वाला आवाज है ना वो फास्ट होता है, मतलब ज्यादा स्पीड होती है उसकी, वैसा करके बोला है। वी कैन ऑल्सो कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट दैट साउंड ट्रैवल फास्टर, वो स्पीड में आता है यहाँ पे, कोई भी मीडियम में एयर से ज्यादा वो आगे आएगा। सब आपके पास जो जो चीज है ना, ये लिस्ट है पूरा, कहाँ पे ज्यादा स्पीड है वहाँ पे। एयर में कितना है 332, ओके। और अगर आप देखोगे सॉलिड में 3560, या स्टील में 5100 मीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड से जा रहा है। मतलब देखो एयर में आवाज आएगा, मतलब अगर समझो मैं कुछ बोला एयर के अंदर, ओके, तो आपके पास पहुंचने के लिए उसको कितना लगेगा 332 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में वो कितना ट्रैवल करेगा 332 मीटर एयर के अंदर। समझो एयर, समझो ये मेरा डिस्टेंस है, ये मेरा डिस्टेंस है, ठीक है, ये मेरा पॉइंट ए है, लेट्स से ये मेरा पॉइंट बी है। तो ये समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पॉइंट बी, अभी मैं समझो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये पराग हियर इज मितांश, लेट्स से।
तो मैंने उसको आवाज दिया मीतांश को, और ये मीडियम मेरा एयर है, तो यहाँ से आवाज यहाँ तक मीतांश तक जाने के लिए वो कितना टाइम लेगा? अगर 332 मीटर 1 सेकंड के अंदर, इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में वो इतना ट्रैवल करेगा 332 मीटर। बट अगर यही वॉइस अगर मैं लिक्विड में दे रहा हूँ या सॉलिड में दे रहा हूँ, मतलब अगर सॉलिड में वो अगर ट्रैवल करेगा तो उसकी स्पीड रहेगी 5100 मीटर इन 1 सेकंड। मतलब आप सोचो, वेरी फास्ट। अभी उन्होंने क्या बोला कि देखो, उन्होंने एग्जांपल दिया है, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। वो पटरी है बरोबर, यहाँ पे रेलवे का ट्रैक है, आपको आपका ट्रेन का आवाज है ना, एयर में से तो, हवा में से तो ट्रेन दूर है, मतलब आपसे 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर, लेकिन आप यहाँ पे कान रखोगे ना, यहाँ पे कान रखोगे तो यू कैन एबल टू हियर द स्पीड, मतलब ट्रेन आ रही है आपको पता चलेगा। हाँ हाँ सर सॉलिड में इतना पानी तो इसलिए होता है ना क्योंकि वो टाइटली पैक। बरोबर है, वेरी गुड, करेक्ट बोला आपने। तो सॉलिड में क्या है कि देखो, ये पार्टिकल ऐसा है तो इसमें वो स्पीड में फटाफट साउंड बाजू बाजू में ट्रैवल करेगा। अभी गैस के अंदर क्या है कि इतना जगह है, अभी ये साउंड प्रोपोगेट होता है, मतलब ये ऊपर नीचे हुआ तो वो जाता तो है, पास तो होता है एनर्जी, बट उसको बहुत टाइम लगता है, तो इट इज वेरी स्लो। मतलब 331 बोला उसने, यहाँ पे 5100, बिकॉज टाइटली पैक, तो यहाँ पे आपको आवाज आएगा। वैसे ही सेम उसने क्या बोला कि जब भी पहले के जमाने में तो वो जो थे रेड इंडियन, उन्होंने बोला है बरोबर है, कोई आपके ऊपर वॉर है, वॉर के लिए कोई चढ़ाई कर रहा है, आपके ऊपर अटैक कर रहा है, तो आपको पता नहीं चलेगा, वो एकदम नजदीक आएगा तभी पता रह चलेगा। उससे अच्छा वो लोग क्या करते हैं कि ग्रेजुअली वो लोग सुनते हैं जमीन पे ऐसा कान रख के कि अच्छा कोई आवाज आ रहा है, तो जो घोड़े के जो पैर है वो टक 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 ऐसा वो आवाज है, वो जमीन पे आप कान रखोगे तो आपको बहुत दूर से भी सुनाई देगा। तो दे विल टेल, अरे चलो ये लोग लगभग 4-5 किलोमीटर दूर है, फटाफट अपना प्रोविजन कर लो, तो लेडीज लोग बच्चे लोग को छुपा देंगे अपना, दे विल प्रिपेयर फॉर द वॉर। सर सर हम अभी भी टाइल्स पे कान रखते हैं ना तो भी कुछ अभी भी आवाज आता है। कहाँ पे? टाइल्स पे कान रखते हैं ना। हाँ सर करके कुछ आवाज। अरे वो तो कोई पंखे वंखे का रहेगा, फैन का, वो नीचे वाले का फैन का आवाज रहेगा। आप समझो, आप ये वाले फ्लोर पे हो, जैसे ये आपका बिल्डिंग है बरोबर है, अभी आप सुआ जाओ नहीं कह रहे मैं आवाज आ गई पंखा लो। हाँ, तो वो ये देखो ये ऐसा है, लिसन, अभी ये वाला फैन है, ये फैन है, लिसन, अरे वो सब छोड़ो। ओके, अभी समझो ये मीतांश का घर है, तो ये मीतांश का घर है और ये पराग का घर है, जैसे तो मीतांश अगर फ्लोर पे यहाँ पे आवाज देगा तो उसको ये फैन का आवाज आएगा, जो मेरे घर का फैन है ना वो उसको सुनाई देगा, बरोबर है, वैसा है, उल्टा है, बट एनीवे ठीक है, वो साउंड हाँ। सर वो रात को विलेज में जो आवाज आती है ना, ट्रिंग ट्रिंग आती है, वो क्या होता है? किसकी आवाज? ट्रिंग ट्रिंग बोल रहे हैं। हाँ ट्रिंग ट्रिंग करते वो एक इंसेक्ट करके कुछ तो। Now what else we have? The same method was used by Red Indian, ये सब हो गया अपना, ट्रेन का हो गया, साउंड कैन ट्रैवल थ्रू गैसेस। ओके, गैस के लिए उन्होंने क्या किया, ऐसा वो बलून रखा और आवाज कर रहा है, अब वो खींचते ना ऐसा प्लास्टिक के ऊपर ऐसा रब करते तो आवाज आएगा, वो कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं, इजी है। हाँ, स्पीड ऑफ साउंड, 1 मिनट बेटा रुक जा, ये इतना कर लेते, स्पीड ऑफ साउंड कर ले, छोटा सा है, एक पैराग्राफ है। सर मैं पढ़ूं स्पीड ऑफ साउंड? हाँ पढ़ो, 1 मिनट, मोक्षा पढ़। स्पीड ऑफ साउंड, लाइट ट्रैवल मच फास्टर देन। सर मैं अब 2 मिनट में आता हूँ। हाँ ऑलमोस्ट इधर क्लास में ही हूँ। हाँ ठीक है। Almost light travels much faster than sound. Almost 3 into 10 raised by 8 meters per second in air. In fact, nothing travels faster than light. You must have noticed that in the rainy season, and the sound of thunder is heard much later than the flash lightning is. This happens because it takes nearly negligible time for the light to reach us, while sound takes much more time. In general, sound travels slowest in gases and faster in liquids and fastest in solids. And the table given below shows the speed of different media at 0 degrees सेल्सियस। तो सुपरसोनिक पढ़ना है, सुपरसोनिक नहीं हाँ पढ़ना है, क्यों नहीं, हाँ
Sir, हाँ। speed of light and speed of sound एक ही है. हाँ मैं बताता हूँ आपको, रुको ना 2 मिनट रुको, मैं आपको बताता हूँ, करके बताता हूँ एक्सपेरिमेंट। हाँ बोलो, सुपरसोनिक स्पीड। Supersonic speed. Any object traveling with a speed greater than the speed of the sound, it is said to have a supersonic speed. It is measured by the ratio of called Mach number. Mach number is equal to object speed upon speed of the साउंड। sound. If Mach number is greater than 1, the object is said to be traveling at a supersonic speed. ओके नाउ पढ़ो, गैस का स्पीड बोलो, गैस में कितना है, एयर में। Sir, मोती के बाजू में मैं बोलूं? हाँ मालूम है, पता चला। हाँ मोक्सा बोलो, Gases, क्या? पढ़ो ना बेटा। Gases air at 332 meter per second, carbon dioxide 260 meter per second, and hydrogen 1270 meter per second. In liquid, alcohol at 1210 meter per second, turpentine 1325 meter per second, in water 1450 meter per second, in solids copper 3560 meter per second, steel 5100 meter per second, glass 5500 meter per second, and granite 6000 meter. ओके वाह, वेरी गुड। तो देखो इसमें स्पीड ऑफ साउंड में देखो, पहले आप देखो ये लाइट की स्पीड जो है ना 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, बराबर। तो अभी आप समझो यहाँ पे ऐसा सीन है, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा क्लाउड है, ये मेरा क्लाउड है, ओके, और ये भी क्लाउड है। यहाँ पे लाइटनिंग हुआ, ऐसा लाइटनिंग हुआ, बरोबर है। सो नाउ यहाँ पे दो चीज प्रोड्यूस होगा, ओके। लाइटनिंग में दो चीज क्या प्रोड्यूस होता है, बोलो क्या दो चीज प्रोड्यूस होगा? हाँ बरोबर, वेरी गुड, साउंड एंड लाइट, बरोबर। दो चीज प्रोड्यूस हुआ। लाइट की स्पीड है 3 इंटू 10⁸, मतलब 3 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, बरोबर है, मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे साउंड की स्पीड है 332। सर 10 और उसके बाद 80 ना? नहीं हो गया, बरोबर है, ऐसा ही है। उसके पीछे 80। तो ये बेसिकली 30 करोड़ मीटर पर सेकंड आ रहा है। देखो ये हो गया 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। 30 करोड़ मीटर मतलब 30 करोड़ मीटर एक सेकंड के अंदर ट्रैवल करेगा। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ओके, अभी आप खुद देखो कि लाइट मेरे पास दोनों साथ में प्रोड्यूस हुआ, लाइट कितना गुना फास्ट मेरे पास आएगी, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल टाइम। जैसे प्रोड्यूस होगा तुरंत मैं देख पाऊंगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बिकॉज मेरा ये दोनों के बीच में गैप बहुत कम है। कितना किलोमीटर है, मीटर है, वो देखना पड़ेगा। लाइट और लाइटनिंग और अर्थ, समवेयर अराउंड दिया है क्या, बिटवीन फ्लैश थंडर कितना डिस्टेंस रहता है, अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस लिखा है क्या? 1 किलोमीटर। भाई बहुत कम है, 1 किलोमीटर है, मतलब 1000 मीटर, ओनली 1000 मीटर फार है ये हम दोनों के बीच का गैप है ना, ये गैप खाली 1000 मीटर का है, 1000 मीटर। तो उसको आने के लिए, साउंड को आने के लिए अंदाजा है ना 3 सेकंड लगेगा, बिकॉज देखो ये 332 मीटर है ना, तो उसको ट्रैवल करने के लिए 3 सेकंड लगेगा साउंड को, ठीक है। और ये तो मेरे पास कितना गुना स्पीड है, 30 करोड़ मीटर पर सेकंड, मतलब उसको 1000 मीटर का पार करने के लिए मतलब उसको 0.00001 सेकंड लगेगा बस। हाँ। 3 सेकंड में क्या होगा? कितना है, 332 मीटर है ना एक सेकंड में। अपने को कितना डिस्टेंस निकालना है, 1000 मीटर, तो कितना हो जाएगा इंटू 3 मतलब अप्रोक्सीमेटली 1000, मतलब इंटू 3 मतलब 3 सेकंड, बराबर है। तो वो बोल रहे वो लोग कि लाइट मुझे पहले दिख जाएगा, मुझे अगर है तो मैं आई कैन एबल टू सी द लाइटनिंग फर्स्ट, देन आफ्टर वाइल आई कैन एबल टू हियर द साउंड ऑफ लाइटनिंग। ऐसा है फंडा, ठीक है। दिस ऑल कंसेप्ट इज बस, और कुछ नहीं है। इन जनरल साउंड ट्रैवल स्लोएस्ट इन गैस, देखो ये मीडियम मेरा एयर है, बराबर, ये दोनों के बीच में मीडियम मेरा एयर है, एयर के हिसाब से स्लो चल रहे हो। अरे वो सॉलिड भी रहता तो भी क्या फर्क पड़ता था, तो भी मेरा 5000 होने वाला था, 5000 मीटर है लेट्स से, तो भी बहुत, मतलब ये मुझे यहाँ पे आते तो 0.20 सेकंड लगता उसको,
और मेरा तो यहाँ पे 0.0001 सेकंड है, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है बस। उसने बोला अलग अलग दिया हुआ है ये वैल्यू, गैस में कितना, लिक्विड में कितना, सॉलिड में कितना, ओके दैट्स इट। अच्छा ये एक सुपरसोनिक स्पीड बोला है उन्होंने, एनी ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इज सेड टू बी हैव अ सुपरसोनिक स्पीड। साउंड से ज्यादा स्पीड वाली जो है उसको बोलेंगे सुपरसोनिक स्पीड। मतलब बेसिकली इसमें बोल रहा है हमारा 332 मीटर पर सेकंड, इससे ज्यादा कोई चीज जाएगा स्पीड में तो उसको बोलेंगे सुपरसोनिक। जैसे वो जेट आता है ना, जेट प्लेन, वो अपना फाइटर पे, फाइटर जेट, बरोबर है। फाइटर जेट की स्पीड क्या रहती है देख लेते हैं, पता चलेगा अपने को। सर मेरे को लगा आप जेट से बोले। फाइटर जेट नहीं माइल, मीटर पर सेकंड देखेंगे ना यार। व्हाट इज द स्पीड ऑफ फाइटर जेट, वही आ रहा है तो लिखा ना इन मीटर पर सेकंड, लिखा ना मार्च में, ये लिखा है मार्च, देखो ये मार्च है, 3.2 मार्च दिखा रहा है, ये कैलकुलेशन करके दिया उसने, लेकिन स्पीड पता नहीं चल रहा है मीटर पर सेकंड में। तो सर स्पीड तो लिखो। हाँ स्पीड लिखना था ना, स्पीड लिखा नहीं रहा, स्पीड ऑफ फाइटर जेट लिखा तो है। एनीवे चलो जाने दो, सो डिटेल में। हाँ इसमें ऐसा बोला है मैच नंबर दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का स्पीड अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, बराबर। मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है जो ये जा रहा है अपने क्या बोलते हैं जेट, उसकी स्पीड अपॉन साउंड की स्पीड। साउंड की स्पीड तो अपने को पता है इन एयर 332, ऑब्जेक्ट की स्पीड समझो है ऐसा है। लेकिन देखो ये मार्च नंबर से पता चला, अगर आपको आता है तो देख सकते हैं। देखो यहाँ पे आएगा आपका ऑब्जेक्ट का स्पीड, मतलब आप बोलो स्पीड ऑफ प्लेन। हाँ सर मैंने गूगल पे मतलब चेक किया ना, हाँ हाउ फास्ट इज योर जेट इन मीटर पर सेकंड, हाँ तो उसमें आ रहा है when thrust is greater than drag an airplane will accelerate forward, all four jet engines to propel the plane, which allows the plane attain cruising speeds of 500 to 900 km per hour or 150 to 250 meter per second. हाँ 150 टू 250 मीटर पर सेकंड। 250. हाँ तो बरोबर है। तो देखो ये इसमें मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ कि जो जेट की स्पीड है 664 मीटर पर सेकंड, मेरा साउंड की स्पीड क्या है 332 मीटर पर सेकंड, बरोबर है। ये हो गया मेरा टूजा, मतलब मेरा मैच नंबर है ना, मैच नंबर हो गया 2, बरोबर है। दैट मीन्स साउंड से डबल स्पीड से जा रही है। ये जो जेट है ना उसकी स्पीड क्या है, साउंड की स्पीड से डबल। ओके तो वैसे उन्होंने गूगल में दिया हुआ है मैच नंबर, देखो ये दिया, अगर आप देखोगे ना मिग 31 करके जो प्लेन है ना वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स देन द साउंड का स्पीड। ओके क्योंकि देखो यहाँ पे ऊपर 3 आ रही है, अगर आप डिवीजन करोगे तो यहाँ पे मिग 31 उसकी स्पीड आ रही है ऑलमोस्ट 1000 मीटर पर सेकंड, बरोबर है। मतलब साउंड से 3 गुना, साउंड जो ट्रैवल करेगा उससे 3 टाइम्स। अभी मिग 31 है वो आप देख लो, अच्छा फाइटर जेट ही है। हो गया खत्म, ये मिग 31 है। सी योर विश, और खत्म ही हुआ था, रुको ना 2 मिनट।